Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 10 from class 7, that is respiration in organism. So if you have missed the exercise questions of other chapters, link is given in the description box below of the playlist of class 7 where you can get all the chapters exercise questions. Also, you can follow me on my Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignments and hot questions given in your textbook. Also, if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Now, without further ado, let's start with today's class. Section A, asking you to give very short answer questions. In that, question number 1 में पूछा है, name the process of taking oxygen into the cell using it for producing energy and removing the gaseous waste. तो उस प्रोसेस का नाम बताना है यहाँ पे जिस प्रोसेस के थ्रू हम ऑक्सीजन को सिर्फ इनहेल एक्सहेल नहीं कर रहे, हम एयर को सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस नहीं बता रहे, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को सेल्स में पहुँचाना जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस हो और जो गैसियस वेस्ट है वो रिमूव हो सके. सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. सो आंसर इज रेस्पिरेशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 3, how does the air we breathe enters the lungs? So the air we breathe enters the lung through trachea and bronchi. ठीक है. Next question number 4, name the respiratory organs of frog. Frog के respiratory organs के नाम हमें बताने हैं. Those are lungs and skin. Next is, where does respiration occur in plants? Plants में respiration कहाँ होता है? That is in mitochondria. Clear? Next, moving on to section B, short answer questions. Question number 1, name the two type of respiration. What is the basic difference between the two? तो हमें पता है कि respiration के दो types हैं. क्या क्या है? एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो अब इन दोनों टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इज दैट aerobic respiration takes place in the presence of oxygen while anaerobic respiration takes place in the absence of ऑक्सीजन. तो एरोबिक जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है जब ऑक्सीजन का एब्सेंस होता है, मींस ऑक्सीजन की प्रेजेंस उतनी नहीं होती. ठीक है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस. एक ऑन द प्रेजेंस, एक ऑन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू द रिब्स एंड डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन? एक्सहेलेशन और इनहेलेशन के वक्त रिब्स और डायफ्राम की क्या स्टेट होती है, उनके क्या हैपन होता है? ठीक है. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन द रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड द डायफ्राम मूव्स डाउन. तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, रिब्स जो होते हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ होते हैं जिससे कि डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है, जिससे कि क्या होता है, ज़्यादा स्पेस बनती है एयर को लेने की. ठीक है. सिमिलरली जब हम एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो रिब्स क्या करेंगे, दे विल मूव डाउन एंड इनवर्ड्स एंड डायफ्राम विल मूव्स अप. उससे क्या होगा, जो स्पेस है, जो कैविटी वहाँ पे तैयार होगी वो अब कम हो जाएगी. मीन्स when they are exhaling they will come to their original position. Clear? So this is what happens to the ribs and diaphragm during inhalation and exhalation. ठीक है. inhalation के वक्त क्या होगा, ribs move up and outward and diaphragm will move down. और exhalation के टाइम पे वो दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाएगी, जिसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, ribs जो हैं they will move down and inwards and diaphragm will move up. Okay. Next question number 3, describe the stomatal apparatus. So what is stomatal apparatus? A stomatal opening surrounded with guard cells and several subsidiary cells is called stomatal
apparatus. तो स्टोमाटा की जो ओपनिंग होती है उसे हम कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग. तो वो जब गार्ड सेल्स और डिफरेंट सब्सिडरी सेल्स से सराउंडेड होगा तो पूरे चीज को हम कहेंगे स्टोमेटल apparatus. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज मेंट बाय फर्मेंटेशन. अब फर्मेंटेशन को दूसरे शब्दों में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है. और हमने अभी अभी पढ़ा था कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. रेस्पिरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. सो द डेफिनेशन विल बी respiration that takes place in the absence of air, or you can say oxygen, is called fermentation or anaerobic respiration. Clear? Next is question number 5. How do fish respire? Fish कैसे respiration करते हैं, fish कैसे respire करते हैं. So फिर fish respire through gills. वो gills की मदद से respiration करते हैं. The blood vessels present in the capillaries of gills absorb dissolved oxygen in water and carry it to the body tissues. तो क्या होता है, उनके जो कैपिलरीज होते हैं गिल्स के, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं. ये ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन वाटर में डिजॉल्व होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, उसको बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाते हैं. तो सारा जो काम है इनका रेस्पिरेशन का इज डन थ्रू दिस gills. So fish respire through the gills. Now moving on to section C, that is long answer type question. उसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि state the role of diaphragm and rib muscles in breathing. तो diaphragm और rib muscle का क्या रोल है breathing में. So as we breathe in, the diaphragm and the muscle attached to the ribs contract, due to which the chest cavity expands. तो जब हम breathe in करते हैं तो जो डायफ्राम और जो मसल्स जो कि रिब्स के साथ अटैच्ड होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि जो चेस्ट की कैविटी है वो ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. अब वहाँ पे कैविटी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, एयर जो है वो बाहर से, बिकॉज ऑफ दिस एयर फ्रॉम आउटसाइड इज सक्ड इनटू द लंग्स, वो लंग्स में आएंगी. ठीक है. एंड दे विल फिल द एल्वियोली. Now what will happen, the oxygen of air diffuses from the alveoli walls into the blood. और यहाँ से जो ऑक्सीजन एयर में प्रेजेंट है वो एल्वियोली के वॉल्स से ब्लड्स में जाके डिफ्यूज्ड होंगे. एंड देन दिस ब्लड्स मूविंग टू ऑल ओवर अवर बॉडी पार्ट्स, they will be carried to all other body parts. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है. फर्स्ट डिफरेंस जो है दैट इज ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्रीदिंग जो है वो जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर रहे होते हैं. बट रेस्पिरेशन क्या है, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें कि दैट इन्वॉल्विंग द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड वी ईट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. तो रेस्पिरेशन उस पूरे बायोकेमिकल प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें कि जो ऑक्सीजन की वजह से जो फूड है वो ब्रेकडाउन हुआ, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ एंड एनर्जी प्रोड्यूस हुआ. इस पूरे बायोकेमिकल प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं. जबकि सिर्फ फिजिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करना और ऑक्सीजन इनहेल करने को हम ब्रीदिंग कहेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, ब्रीदिंग इट अकर्स आउटसाइड द सेल एंड रेस्पिरेशन इट अकर्स इनसाइड द सेल. नेक्स्ट, नो एंजाइम इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, इन ब्रीदिंग प्रोसेस. ठीक है. बट एंजाइम्स आर इन्वॉल्व एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन हम बायोकेमिकल प्रोसेस कर रहे हैं. अब केमिकली प्रोसेस के लिए ज़रूरी है कि कुछ एंजाइम्स यूज में आए, इसीलिए इन केस ऑफ रेस्पिरेशन एंजाइम्स आर बीइंग यूज्ड, बट ब्रीदिंग एज इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस देयर इज नो एंजाइम इन्वॉल्व्ड. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, नो एनर्जी इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब. अब जैसे कि ब्रीदिंग एक सिर्फ फिजिकल प्रोसेस था तो इसीलिए यहाँ पे कोई एनर्जी ना ही एब्जॉर्ब हुआ ना ही इवॉल्व हुआ. लेकिन रेस्पिरेशन में देयर इज एनर्जी इज रिलीज इन अ कंट्रोल्ड एंड स्टेप वाइज मैनर. लेकिन रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है वो कंट्रोल्ड और स्टेप वाइज मैनर में रिलीज होता है.
So these are the 4 differences between breathing and respiration. Next is question number 3. Explain the mechanism of breathing in human. Humans में जो breathing के process है, means जो सांस लेने का, exchange of gases का process है, वो क्या है उसको explain करना है. ठीक है. First, during inhalation. पहले हम inhalation को explain करेंगे and then we are going to discuss about exhalation. So first, during inhalation, the ribs move up and outwards. Ribs ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ होते हैं and जो diaphragm होता है वो नीचे की तरफ होता है. ठीक है. That is, diaphragm contracts and pull downwards. Now this movement increase the volume of the chest cavity. इससे क्या होता है, जो chest cavity का volume है वो ज़्यादा हो जाएगा and the lungs will expand. और जो lungs हैं वो expand होंगे. इससे क्या होगा, इससे रिजल्ट ये होगा कि द प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज एंड द फ्रेश एयर रशेज इनटू द लंग्स. अब जहाँ पे प्रेशर कम होगा वहीं पे फ्रेश एयर ज़्यादा तेज़ी से आने की कोशिश करेगा. इसीलिए जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा तो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि बाहर का जो फ्रेश एयर है वो लंग्स में आ जाएगा. सो ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट विल एक्सपेंड. Now let's talk about exhalation. So during exhalation क्या होगा, the ribs will move down and the diaphragm will move up. So diaphragm जो है वो रिलैक्स करेगा, दोबारा से अपनी पोजीशन पे आएगा, इसलिए वो ऊपर की तरफ जाएगा एंड जो रिब्स है वो भी नीचे की तरफ और इनवर्ड आ जाएगा, मीन्स अपने ओरिजिनल पोजीशंस पे दोबारा आ जाएंगे. अब इससे क्या होगा, इस मूवमेंट की वजह से जो चेस्ट कैविटी है वो कम हो जाएगी. चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी तो जो प्रेशर है, जो लंग होगा वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो प्रेशर है इनसाइड द लंग दैट विल आल्सो इंक्रीज. अब जैसे कि अंदर प्रेशर ज़्यादा है और बाहर प्रेशर कम है तो जो एयर है दैट विल बी पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स. ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एक्सहेलेशन. क्लियर? सो दिस इज द होल मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दैट इज द ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स. Next is question number 4. Describe briefly the respiratory organs of following. हमें इन सब के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. तो पहला क्या है, ह्यूमन. सो द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर नोज, नेसल पैजेस, trachea, bronchi, lungs and diaphragm. So these are the main organs of human respiratory system. Next is earthworms. Earthworms breathe through their skin. Their skin has a number of blood capillaries. Now earthworms absorb oxygen from the air in their blood through their moist skin. तो earthworms कैसे ब्रीथ करते हैं, अपने स्किन के थ्रू. उनके स्किन में बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं. तो earthworm क्या करते हैं, वो जो ऑक्सीजन है वो एयर से एब्जॉर्ब करते हैं इन देयर ब्लड. कैसे? थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. ओके. Next is cockroach. Cockroach has a respiratory system consisting of a network of branched air tubes called trachea. ठीक है, अब उसमें क्या होता है, कॉकरोचेस में क्या होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच्ड एयर ट्यूब. बहुत सारे एयर ट्यूब्स के ब्रांच्ड एक नेटवर्क होता है जिसको वो कहते हैं ट्रकिया. नाउ दीज एयर ट्यूब्स हैव ओपनिंग्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स. और इन एयर ट्यूब्स के जो ओपनिंग होता है वो होता है स्पाइरेकल्स ऑन द बॉडी सरफेस. नाउ द स्पाइरेकल्स ओपन एंड क्लोज टू अलाउ द गैसेस टू मूव इन एंड आउट. तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो रेगुलेट किया जाता है बाय स्पाइरेकल्स. ठीक है. नाउ ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द ट्रकिया tubes through spiracles and diffuses into the body tissues and reaches every cell of the body. तो ऑक्सीजन रिच जो एयर होता है वो एंटर करता है ट्रैकियल ट्यूब्स के अंदर थ्रू दिस ओपनिंग्स विच इज कॉल्ड स्पाइरिकल्स. देन वो डिफ्यूज होता है बॉडी टिश्यूज में और डिफरेंट सेल्स ऑफ बॉडीज तक जाके पहुंचता है. इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से ट्रकिया के अंदर आता है एंड मूव्स आउट थ्रू स्पाइरिकल्स. क्लियर? सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन केस ऑफ कॉकरोचेस. नेक्स्ट पूछा है फिश का. फिश का हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था. लेट रीड इट वंस अगेन. दैट इज फिश जो है उनके पास एक स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिसको कहा जाता है गिल्स.
गिल्स क्या होती हैं? गिल्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फाइन कैपिलरीज कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, और इन गिल्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे विल एब्जॉर्ब द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, जो वाटर में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करेंगे एंड उसको डिफरेंट बॉडी टिश्यूज तक पहुंचाएंगे. नाउ द ब्लड वेसल्स ऑल्सो ब्रिंग बैक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल टू द गिल्स, और ये जो ब्लड वेसल्स है वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको सारे सेल्स से गिल्स तक लेके आएंगे, एंड देन द गिल विल पास दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन द सराउंडिंग वाटर. ठीक है, इस तरीके से दे विल रेस्पायर इन वाटर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी, जिसमें कहा है कि टेक द ऑड वन आउट गिविंग रीजन. तो पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन. तो इसमें से जो ऑड वन आउट है दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन. वाई? बिकॉज अदर्स आर कंसर्न विथ ब्रीदिंग. बाकी सब जो है वो हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स जो ब्रीदिंग है उसके बारे में ही कंसर्न है. नेक्स्ट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, इथाइल अल्कोहल एंड मसल्स. तो इथाइल अल्कोहल इज द ऑड वन आउट हियर. वाई? बिकॉज अदर्स आर कंसर्न विथ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स इन ह्यूमन. Moving on to question number 3, inhalation, exhalation, oxygen intake, chest expansion. तो obviously ये बहुत ही easy है, साफ पता चल रहा है कि इसमें जो odd one out होगा वो है exhalation, क्योंकि बाकी सब जो है वो inhalation को concern करता है. Next is exhalation, carbon dioxide, contraction of lungs, expansion of chest. सो एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ठीक उल्टा है, दैट इज अदर्स आर कंसर्न विथ एक्सहेलेशन. क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी सब जो थे वो इनहेलेशन को कंसर्न कर रहे थे, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में बाकी सब जो है वो एक्सहेलेशन को कंसर्न करके हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन फ्रॉम दिस सेक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल, डे टाइम, नाइट टाइम. तो ऑब्वियसली इसमें से जो नाइट टाइम है दैट इज द ऑड वन आउट. क्यों? बिकॉज बाकी सब जो है दे आर कंसर्न्ड विथ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सनलाइट की ज़रूरी है, क्लोरोफिल का ज़रूरी है, होना ज़रूरी है, एंड देन डे टाइम का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज ये सनलाइट तो हमको मिल नहीं सकता. इसीलिए नाइट टाइम इज़ द ओनली टाइम एंड द फोटोसिंथेसिस कैन नॉट हैपन. सो नाइट टाइम इज़ द ऑड वन आउट हियर. Next is the final section of this exercise, that is section E. Define the following terms. जो terms दिए गए हैं उनका definition है, उनको define करना है. So first जो term है that is respiration, इसको ही हमने इतनी देर से discuss किया. So still let's see it once more. That is the process of taking oxygen into the cell, using it for producing energy and removing the gaseous waste products, that is carbon dioxide and water, is termed as रेस्पिरेशन. सो रेस्पिरेशन क्या है? उस प्रोसेस को कहेंगे जब हम ऑक्सीजन को सेल में लेंगे एंड एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे एंड जो गैशियस वेस्ट है उसको रिमूव करेंगे, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर को रिमूव करेंगे, उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे रेस्पिरेशन. एंड रेस्पिरेशन अकर्स इन द लिविंग सेल्स. क्लियर? नेक्स्ट इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है. ठीक है, सो रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. नाउ ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, एंड ऑब्वियसली रेस्पिरेशन है तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. सो हियर इज द इक्वेशन गिवन, दैट इज ग्लूकोज in the absence of air in the cells they will produce ethyl alcohol, carbon dioxide and they will release energy. नेक्स्ट टर्म गिवन इज स्टोमेटल अपैरेटस. इसको भी हमने पढ़ा था कि जो स्टोमेटल ओपनिंग होती है जो कि गार्ड सेल से सराउंडेड होती हैं एंड साथ ही में बाकी सब्सिडरी सेल्स से भी सराउंडेड होती है, उस पूरे स्ट्रक्चर को, उस पूरे सिचुएशन को हम कहते हैं स्टोमेटल apparatus. So a stomatal opening surrounded with two guard cells and several subsidiary cells is called stomatal apparatus. Next is photosynthesis.
सबको पता है, that is a very easy one to explain. That is the process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. और ये यहाँ पे word equation दे रखा है. What is it? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी यूज करके in the presence of chlorophyll they will produce their food, that is glucose, and they will release oxygen. So this is the whole process of photosynthesis जिससे कि plants अपना खाना खुद बना सकते हैं. Clear? So students, that's all for today's video. In our next video, we are going to discuss the exercise questions of another chapter. Till then, stay tuned and thank you.